Hello everyone. Today I am along with PGT English syllabus that's flashing on your screen. Let me tell you first, according to this syllabus, I am going to explain how to spot errors. This section includes parts of speech and uses. So let's understand them accurately and precisely. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. वर्ड स्पोकन और रिटन आर टोल्ड is called parts of speech. They are 8 in numbers, such as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Have a cursory glance at them. If we talk about noun a naming word, pronoun a replacing word, adjective a qualifying or beautifying word, verb a saying word, a modifying word, preposition showing relation, and conjunction joining word, interjection sudden outburst of our feelings. Again, if we go to define noun is a word that names any person, any place, anything, any quality, any action, any state. Through definition, we get person, Ram, John, Alisha, Sita, place, Delhi, Mumbai, Lucknow, America. If we talk about things, we get table, book, cycle, gold, wheat, lots more things. Quality, beauty, truth, state, poverty, honesty, sleep, death. And if we talk about action, there are verb choice. Thus we can have the following kinds of a noun. They are proper, common, collective, material, and abstract. If we give particular name to a person, place, or thing, it is called proper noun. As you have seen earlier, Ram, John, Alisha, Sita, Delhi, Mumbai, Lucknow, America, table, book, cycle, gold, beauty, truth, poverty, honesty, work choice. So one by one we are getting particular name. If particular name is given to person, place, or thing, they are called proper noun. Common noun, common to all person, place, thing, in its each, kinds and clause. Collective noun, group of person, group of place, group of thing. Material, substance, metal, or any products. Abstract noun denotes quality, state and action. तो हम नाउन में कॉमन एरर्स क्या हैं, इस पर अब चर्चा करेंगे और रूल्स के सहारे, एग्जाम्पल्स के सहारे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भली भांति इन कॉमन एरर्स से जो नाउन के अंतर्गत होते हैं उनसे आप बचें. तो जानने की कोशिश करते हैं रूल के द्वारा. रूपी और रूपीज को डिनोट करने के लिए या उसके अर्थ में हम मनी का प्रयोग करते हैं. अगर एग्जाम्पल देखें, आई हैड नो रुपीज, तो गलत है. आई हैड नो मनी. He has lots of rupees.
लॉट्स ऑफ क्या शो करता है? लॉट्स ऑफ क्वांटिटी को बताता है और मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लॉट्स ऑफ मनी हम लिखेंगे। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। एक्सेप्शन की बात कर ले, अपवाद अंग्रेजी में बहुत है। आई हैड 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज एटसेट्रा। प्रिविलेंट है, प्रचलित है, थ्योरेटिकली गलत है, लेकिन कॉमनली इट हैज बिकम ए यूसेज, इसलिए सही है। रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि ब्रेड शब्द आता है। ब्रेड को लेकर के मन में कंफ्यूजन रहता है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। टू डिनोट इट्स नंबर, अगर इसके नंबर को हम बताएं तो ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ, पीसेज ऑफ, लोफ्स ऑफ का प्रयोग करके इसके नंबर को डिनोट करते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रेड्स लिख देने से, ए ब्रेड लिख देने से गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि he got 2 breads। अब ये इनकरेक्ट है। 2 breads, ब्रेड का बहुवचन एस लगा के नहीं होगा। he got 2 pieces or loaves of bread। I eat a bread, a bread गलत हो। I eat a piece or a loaf of bread करेक्ट होगा। तीसरे नियम की तरफ अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि टीचरी, अपलिफ्टमेंट, लेक्चररशिप, फ्रीशिप का बड़े धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। आई लाइक टीचरी, ये भी कोई शब्द? टीचरी कोई शब्द नहीं, गलत यूसेज है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको सीखें। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, he applied for teachership। टीचरी, टीचरी कोई शब्द नहीं होगा यहाँ पर। he applied for teachership। उसी तरह मैंने कहा आई लाइक टीचरी, अभी बताया टीचरी कोई शब्द नहीं, आई लाइक टीचरशिप। शी अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। लेक्चरर अपने आप में एक नाउन है और शिप लगा करके आघात ना करें, गलत ना करें। लेक्चरशिप, शी अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप। इसी तरह से आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज। अब आप देखिए, अपलिफ्ट तो स्वयं एक नाउन है, इसके पीछे मेंट लगाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत गहरी भूल कर रहे हैं। तो आई वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ माई विलेज। ही गॉट फ्रीशिप। फ्रीशिप ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। ही गॉट फ्री स्टूडेंटशिप, तब जाकर के आपका वाक्य सही होगा। अगले रूल की तरफ चलें। अक्सर देखा जाता है थिएटर शब्द का इस्तेमाल होता है। थिएटर को कभी एंजॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि थिएटर मीन्स ए स्पेशल बिल्डिंग और प्लेस फॉर परफॉर्मेंसेस। अब ऐसी जगह पर जो हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, आप थिएटर को एंजॉय करने लगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ही एंजॉयड द थिएटर। अभी अभी बताया द थिएटर को अगर हम प्ले से रिप्लेस कर दें तब वाक्य सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वी एंजॉय
मूवी, सिनेमा, एग्जीबिशन और प्ले एटसेट्रा। अब ऐसी चीजों को एंजॉय करने जाते हैं, ना कि किसी प्लेस को एंजॉय करने जा रहे हैं जहां पे ऐसे परफॉर्मेंसेस परफॉर्म किए जाते हैं। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट रूल में पोएट्री को आप देख रहे हैं ना कि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी दशा में इट्स ए नाइस पोएट्री लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि पोएट्री ये आर्ट है किसी कवि का, ये आर्ट ऑफ ए पोएट। और ऐसे इन जनरल जो है पोएम्स कहलाती है। सिंगल पोएम के लिए ए पोएम लिखा जाता है, सही भी है, लेकिन आप ए पोएट्री गलत कर देंगे और गलत है भी। तो इसकी जगह पर पोएट्री ना लिख करके आप ए पोएम आप लिख सकते हैं। आप लिखते हैं गेट बाय हार्ट। गेट बाय हार्ट एक ईडियम है, और अगर हमें किसी जो है चीज को याद करना है तो हम मेमोरी से रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं। गुड नाइट की बात आती है, ये पार्टिंग फ्रेज है, विदा लेने वाला फ्रेज है। उसके जगह पे गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आप प्लेस का इस्तेमाल कर बैठते हैं छोटी छोटी जगहों के लिए, संकुचित स्थानों के लिए। वहां पर आपको प्लेस है क्या चीज? प्लेस डिनोट्स वाइड स्प्रेड एरिया और लैंड। ये विस्तृत क्षेत्र की तरफ इशारा करता है, किसी कॉन्टिनेंट को, किसी देश को, किसी भी भूभाग को। तो आप उसको छोटे, अगर इन लिमिटेड सेंस, अगर लिमिटेड सेंस में अगर आप प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्पेस और रूम को जगह दीजिए। चलते हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप एग्जांपल्स पे अगर नजर करेंगे तो आप देखते हैं कि इट्स ए नाइस पोएट्री। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नाइस पोएट्री को आप पोएम से रिप्लेस कर दें। क्वेट द पोएम फ्रॉम हार्ट। आप अगर क्वेट कर रहे हैं, फ्रॉम हार्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रॉम मेमोरी करें। किसी भी क्वेट द पोएम फ्रॉम मेमोरी, ना कि फ्रॉम हार्ट। इसीलिए मैंने कहा गेट बाय हार्ट एक इडियम है, और इस तरह से इस गलती से बचें। आप कभी कभी बहुत बड़े झूठ कर बैठते हैं कि किसी को बैठाते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं, और ऐसे समय में शाम का समय हुआ है और आप जो है गुड नाइट बोल रहे हैं। गुड नाइट सर, जरा एग्जांपल देखो। गुड नाइट सर, हैव ए सीट। गुड नाइट मैम, हैव ए सीट। अब जरा आप ध्यान दीजिए, एक तरफ गेस्ट को आप बिठा रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बैठने का निमंत्रण आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप जा रहे हैं, अगला जो विजिटर है वो मिलने आया है, आपको विजिट करने आया है, और आप जा रहे हैं, तो आप गलत बोल रहे हैं ना। शाम के समय गुड नाइट को आप गुड इवनिंग सर या मैम, हैव ए सीट आप कर सकते हैं। और ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस से आप बचें। अब दूसरी बात करते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। एग्जांपल्स में हमने दिखाया कि देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। किसी भी संकुचित या स्मॉल प्लेस के लिए, छोटे स्थान के लिए जिसका दायरा बड़ा न हो, ऐसी सूरत या अवस्था में आप जो है प्लेस को रूम या स्पेस से परिवर्तित करें। वहां पे आप जो है बोलें, लिखें, व्यवहार में लाएं, देयर इज नो रूम और स्पेस फॉर अस इन द कार। तब आप ऐसे ब्लंडर से बच सकते हैं। तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेजेस लाइक ए क्वांटिटी ऑफ डिनोट्स अमाउंट, मात्रा का बोध कराता है। ए नंबर ऑफ डिनोट्स काउंटिंग,
गणना संख्या का बोध कराता है। ऐसी स्थिति में अगर ये गलत प्रयुक्त हो जाए तो अशुद्धि मानी जाए। मिस्टर एंड मिसेस आर ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन्स। मिस्टर और मिसेस को सिंगली अलोन अर्थात अकेले कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहां भी अशुद्धि हो जाती है अकेले होने पर। अगर हम ड्रेसेस और क्लॉथ्स की आपस में तुलना करें तो ये दो अलग अलग जेंडर्स के पहनावे की तरफ इशारा करता है। ड्रेसेस worn by girls or women, whereas clothes worn on the body of both the genders with masculine gender and feminine gender। कहने का मतलब है क्लॉथ्स को पुरुष और महिला दोनों धारण कर सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जरा फिर से हम देख लेते हैं कि he lost a quantity of books। यहां देखें क्वांटिटी ऑफ बुक्स गलत यूसेज है। बुक्स काउंटेबल है, लेकिन एक क्वांटिटी ऑफ से अमाउंट यानी मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध होता है। तो ऐसे में इसे लिखना चाहिए he lost a number of books, we had a large number of money। अगर हम अगला उदाहरण देखें तो we had a large number of money। a number of को आप जो है एक क्वांटिटी ऑफ चूंकि मनी के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है तो अमाउंट ज्यादा सटीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो ही लॉस्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगर अगले उदाहरण पर हम नजर करें, सॉरी मिस्टर आई कांट कम। अब जरा ध्यान से देखो, सॉरी मिस्टर आई कांट कम। मिस्टर के साथ में कोई नाउन नहीं है। कौन मिस्टर? ऐसा बोलचाल में प्रयुक्त होता है। यहां पर ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा शुद्ध होगा अगर हम इसको ऐसा कहें कि सारी सर या सारी मिस्टर गौर, सारी मिस्टर सेन गुप्ता हुसोएवर। किसी नाउन को आप यहाँ मिस्टर या मिसेस के बाद में जरूर रखें। ऐसा नहीं होने पर गलती हो जाती है, अशुद्धि मानी जाती है। अगर आप आगे देखें, जैसा कि हमने अभी बताया नियम में कि ड्रेस और क्लॉथ्स का अगर गलत यूसेज है और गलत जेंडर के साथ में दोनों का अनुप्रयोग है तो ब्लंडर मानी जाती है। देखें, डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ड्रेस वर्न ओनली बाई फेमिनिन जेंडर, गर्ल्स और वीमेन धारण करती हैं। तो हिज न्यू ड्रेस के जगह यानी कि हिज लगा हुआ है मैस्कुलिन जेंडर, तो इसके लिए सबसे सटीक होगा क्लॉथ्स। डू यू लाइक हिज न्यू क्लॉथ्स, सूट भी लिख सकते हैं। उसी के परफेक्ट में डू यू लाइक हर न्यू क्लॉथ्स, न्यू ड्रेस आप लिख सकते हैं। सही माना जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगले नियम की तरफ हम चले। काज मीन्स रीजन, लेकिन अगर काज का गलत अनुप्रयोग हो जाए, गलत यूसेज हो जाए, जैसा कि उसके साथ कभी भी वाई
नहीं फॉलोड होता। काज के बाद वाई कभी भी फॉलोड नहीं होता, उसके बाद में कभी नहीं लिखा जाता, कभी नहीं बोला जाता। तो हमेशा जो है इसके साथ में फिर कौन सा प्रीपोजिशन फॉलोड हो? प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। तो उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। दिस इज द कॉज व्हाई आई डोंट लाइक इट। अब आप जरा ध्यान से देखें कि कॉज व्हाई, काज के बाद में व्हाई आया, यानी कि काज इज फॉलोड बाय व्हाई। आप इसको लिखें, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट। काज को रीजन से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। अगर हम काज के बाद में आप लगाएं तो ज्यादा सटीक होगा। What was the cause of the accident? ये सही प्रयोग है। रीजन का प्रयोग, रीजन के बाद में वाई आता है, आप नहीं लगा सकते। अगले नियम की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए, क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग चीजें हैं। क्लाइमेट यानी कि जलवायु और वेदर यानी कि मौसम। क्लाइमेट का अर्थ अंग्रेजी में होता है जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। कहने का मतलब है कि किसी बहुत बड़े भूभाग, किसी महाद्वीप, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम क्लाइमेट का प्रयोग करते हैं, अर्थात जलवायु। लेकिन जहां हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर जो है एक पर्टिकुलर टाइम की तरफ इशारा करता है, एक खास समय की तरफ इशारा करता है, अर्थात मौसम। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर या फिर इंडिया सूट्स मी। भाई इंडिया एक कंट्री है, क्षेत्र विशेष में कश्मीर तो यहां पर सूट कर रहा है क्लाइमेट। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। यहां पर वेदर पर्टिकुलर टाइम बता रहा है कि दिल्ली का जो पर्टिकुलर टाइम है, कोई मौसम है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई, तो वो डज नॉट सूट मी, मुझे सूट नहीं करता है। तो जरूरी नहीं कि औरों को ना सूट करे, लेकिन हम वेदर और क्लाइमेट में अंतर महसूस करें, एक्सपीरियंस करें, और तब हम उसका सटीक प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। गर्ल और डॉटर में अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। गर्ल क्या है? ए फीमेल चाइल्ड है। डॉटर क्या है? ए फीमेल चाइल्ड रिलेटेड टू पेरेंट्स। अंतर है। डॉटर किसी माता पिता की पुत्री होती है तो लड़की, लेकिन वो पुत्री विशेष से संबंधित है। लेकिन अगर हम गर्ल की बात करें तो ये लड़की फीमेल चाइल्ड मानी जाती है। अगर इसका हम उदाहरण में प्रयोग करके देखें, माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। यहां पर माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी अक्सर कंट्री फॉक्स, जो हमारे फॉक्स हैं रूरल एरियाज में, या फिर यहाँ तक कि सिटी स्तर पर भी, अर्बन एरियाज में भी देखा जाता है। मेरी लड़की की अभी शादी करने की उम्र नहीं हुई, यहाँ पर वो लड़की शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसी के मद्देनजर गर्ल शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में हो गया, तो गलत।
यहाँ पर गर्ल को अगर हम डॉटर से रिप्लेस कर दें जो कि शुद्ध भी है तो सही हो जाएगा। माई डॉटर इज टू यंग टू मैरी। अगले उदाहरण में अगर हम देखें आई सा ए गर्ल की जगह पर अगर हम आई सा ए डॉटर कर दें, आई सा ए डॉटर ऑन द रोड, तो गलत हो गया। भाई मैंने सड़क पर पुत्री को देखा, कहने का हमारा आशय था कि लड़की को देखा, तो आपने वहां पर गलत कर दिया। तो आप डॉटर को गर्ल से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। आई सा ए गर्ल ऑन द रोड। तो इस तरह से ऐसी अशुद्धियों से आप बचें। तो हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे कुछ शब्दों के सहारे। कुक डिनोट्स द मैन हु कुक्स। एज फार एज कुकर इज कंसर्न, कुकर इज एन apparatus फॉर कुकिंग। अब अगर इस शब्द का गलत अनुप्रयोग हो जाए, गलत यूसेज हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? अशुद्धि। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि माई हस्बैंड इज अ गुड कुकर। माई हस्बैंड इज ए गुड कुकर। अब कुकर क्या चीज है? एपैरेटस है, दैट इज ओनली फॉर कुकिंग। तो हस्बैंड तो कुकर है नहीं, कोई एपैरेटस तो है नहीं, वो लाइविंग है, कुकर नॉन लाइविंग है। ऐसे में यहाँ पर गलती हो गई, आपने एपैरेटस बना दिया अपने पति को, अर्थात हस्बैंड एपैरेटस हो गया, तो गलत हो ही जाएगा। अब आप कुकर को कुक से रिप्लेस कर दें तो सही हो जाएगा कि माई हस्बैंड इज ए गुड कुक। आई प्रिफर गैस कुक्स टू इलेक्ट्रिक वंस। गैस कुक्स, यहाँ पर कुक्स आपने लाइविंग कर दी, जबकि गैस नॉन लाइविंग है, इलेक्ट्रिक वंस भी नॉन लाइविंग है। ऐसे में आप जो है वहां पर गलती कर रहे हैं, एपैरेटस चाहिए और आपने वहां पे लाइविंग को लगा रखा है, तो अशुद्धि दूर कैसे हो? आई प्रिफर गैस कुकर्स टू इलेक्ट्रिक वंस। इस तरह से बात सही हो जाएगा। कभी कभी कुछ शब्दों में भी कमियां देखने को मिलती हैं, अशुद्धियां हो जाया करती हैं, ऐसा अक्सर होता है। तो इन अशुद्धियों को कैसे दूर करें? जैसे थैंक है, वेजिटेबल है, रिगार्ड है, कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे शब्दों में भी गलत यूसेज हो जाता है, एरर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आई गेव हिम थैंक। तो थैंक को अगर आप थैंक्स से रिप्लेस कर दें तो भी तभी ये गलती दूर होगी, क्योंकि थैंक्स बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है, सिंगुलर नहीं होता। इसी तरह सी लाइक्स वेजिटेबल। भाई देखिए, वेजिटेबल प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। काटते हैं आप सब्जी, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो प्लूरल आपने सिंगुलर का इस्तेमाल किया है। शी लाइक्स वेजिटेबल्स अगर आप सीखेंगे तभी ये गलती दूर होगी। तो इसका मतलब है कि वेजिटेबल को वेजिटेबल्स से रिप्लेस कर। आगे बढ़ते हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू हिम। अब यहाँ बेस्ट रिगार्ड, रिगार्ड सब बिल्कुल अलग होगी। आप सैल्यूट कर रहे हैं, किसी को सलाम भेज रहे हैं, अपना अभिवादन भेज रहे हैं, अपना जो है नमस्ते किसी के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसी दशा में वहां पर रिगार्ड को रिगार्ड्स से आप अगर रिप्लेस कर दें तो सही हो जाएगा। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू
एग्जाम्पल, आई एम ओवरवेल्म्ड बाई सच कॉम्प्लीमेंट। अब मैं उसके कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? गलत यूसेज हो गया। कॉम्प्लीमेंट को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स से, क्योंकि इसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर होना ये चाहिए था कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाई सच कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट्स से रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम चले, कुछ शब्दों में भी ऐसी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। कजन, कजन से ही ममेरा फुफेरा, ममेरी फुफेरी, भाई बहन के रिश्ते समझ में आते हैं। अब इसके साथ अगर आपने नाउन्स का प्रयोग किया है तो गलत हो जाएगा। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, गलत हो सकता है। कजन इज नेवर फॉलोड बाई एनी नाउन। बोर्डिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बोर्डिंग अकेले नहीं प्रयोग किया जाता। बोर्डिंग हाउस अगर आप प्रयोग करेंगे, इसके साथ अलग से इसका नाउन लगाएंगे, कंपाउंड, तब जाकर के ये बोर्डिंग हाउस बनेगा। इसी तरह से पुअर पीपुल एक स्लैंग यूसेज है, पहले प्रयुक्त होता था, आज मॉडर्न इंग्लिश में गलत मानी जाती है। जो स्लैंग है तो फिर अप्रचलित है। ऐसी दशा में ऐसे प्रयोग से बचें। सिग्नेचर को साइन की जगह पर रखें। अक्सर लोग कहते हैं भाई साइन कर दो, मेरी यहाँ साइन ले लो, मैं यहाँ साइन दे रहा हूं। अब ऐसे में आप साइन क्या चीज? साइन तो संकेत है, साइन तो इशारा है। अब क्या आप इशारा दे रहे हो, संकेत दे रहे हो? अरे भाई आप अपने इनिशियल को आप दे रहे हो, अपने हस्ताक्षर को आप दे रहे हो, तो वहां सिग्नेचर लिखिए। तो सिग्नेचर शुड बी पुट or used in place of a sign word. इंग्लिश टीचर, ये भी एक स्लैंग यूसेज है, पहले प्रचलित होता था। आज भी बहुत से स्थलों पर मैं भी सुनता हूं, आई एम एन इंग्लिश टीचर। भाई वो इंग्लिश टीचर है, गॉड्स आर इंग्लिश टीचर, पहले प्रयोग। इसको, इस स्लैंग को दूर करें। द टीचर ऑफ इंग्लिश से रिप्लेस करें, गलती समाप्त हो जाएगी। फैमिली मेंबर्स, अगर हम इस शब्द को देखें, ये जो हमारा फ्रेज है फैमिली मेंबर, तो हम फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि ये एक स्लैंग है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर इसके एग्जाम्पल पर जाएं, आवर फैमिली मेंबर्स आर नाउ प्रेजेंट हियर, तो करेक्शन होगा आवर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर नाउ प्रेजेंट हियर। यदि वीडियो को लाइक किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तुरंत प्रेस करें। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।